Hello students, we are doing solutions and in dilute solutions we are doing colligative properties. We have done colligative property, that is elevation in boiling point. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनता है उसमें हम सॉल्यूट डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और इसको हम इसका सारा प्रोसीजर कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका मेजरमेंट, कैसे मेजरमेंट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। देयर आर टू मेथड्स, वन इज़ Landsberger method and the second is Cottrell's method. This is Landsberger apparatus. In the Landsberger method, the vapors of the boiling solvent, they are used to heat the solution. In this, there is no danger of superheating. This apparatus consists of a flask, this flask, which contains the pure solvent, and it is connected through a delivery tube. You are watching here this delivery tube. This is a flask containing the solvent, and here is a delivery tube. It is connected to a graduated tube, this one, which contains a small quantity of the solvent. This contains small quantity of solvent. A small hole etched towards the top of the graduated tube, this hole. This permits the communication with the outer vessel. This is outer jacket. Green color, this is outer jacket. It permits the communication with the outer vessel. A condenser is attached here. Helps to condense the escaping vapors. A thermometer is lowered in this graduated tube, and this is not a normal thermometer. This is a Bachmann thermometer which can read up to 0.01 Kelvin. A stream of solvent from the flask, from here, a stream of solvent through this tube, delivery tube, comes here, enters the graduated tube and condenses there. The latent heat of condensation raises the temperature of the solvent. Solvent is here in this tube. The latent heat of condensation raises the temperature of the solvent to the boiling point. When the temperature remains constant, it is noted, and this is the boiling point of solvent. Now what happens? Now what we'll do, we'll remove this cap and we'll put some solute in it. So that becomes a solution. And the same way the vapors from here goes, and this will boil, the solution will boil, and then we note the temperature of the boiling point of solution. The difference will give the elevation in boiling point. Then we can also measure the volume and weight of the solute and volume of the solution and volume of the solvent also. क्या होता है, इसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्वेंट के जो वाष्प होते हैं, वेपर्स होते हैं, वो इस डिलीवरी ट्यूब से इस ट्यूब में आते हैं, ये ग्रेजुएटेड ट्यूब में। ग्रेजुएटेड ट्यूब में एक थर्मामीटर लगा है, आउटर जैकेट है, और ये ट्यूब्स है जिससे वेपर्स आ रहे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से वेपर्स आ रहे हैं, बॉइलिंग सॉल्वेंट के वेपर्स। हम बॉइलिंग सॉल्वेंट के वेपर्स क्यों लेते हैं कि सुपर हीटिंग ना हो। ये इधर से आए, ये है रोज़ हेड। रोज़ हेड में छोटे छोटे छेद हैं जिससे वेपर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ सॉल्वेंट है, मेजर क्वांटिटी ऑफ हमने सॉल्वेंट लिया है, यहाँ से वेपर्स आए, वेपर्स में यहाँ पे हीट आई, हीट आने से ये बॉयल होने लगा सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट बॉयल हुआ तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, हमने उस टेम्परेचर को नोट कर लिया जो कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था।
और ये आउटर जैकेट भी लगी है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है हीटिंग को। अब क्या करेंगे, हम इसको हटाएंगे और इसमें सॉल्यूट की एक मेजर क्वांटिटी डालेंगे। तो अब यहाँ ये सॉल्यूशन बन गया, इधर से डाला सॉल्यूशन बन गया। अब उसी तरह वेपर्स वापस लगाएंगे, हीटिंग करेंगे सॉल्वेंट की तो वेपर्स आएंगे और इसको हीट करेंगे तो सॉल्यूशन बॉयल होगा, टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का होगा। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये लैंड्सबर्जर मेथड है। बोलिए क्या? और दूसरा मेथड जो है वो है कॉटरेल मेथड। कॉटरेल सेपरेटर्स इज हियर। इसमें क्या है, इसमें भी एक ग्रेजुएटेड ट्यूब है। दिस इज़ द बेटर वर्जन ऑफ बेकमैन्स मेथड। इसमें ये ग्रेजुएटेड ट्यूब है, आपको दिख रही है। इसमें लिक्विड सॉल्वेंट लिया जाता है और एक इसमें इन्वर्टेड फनल रख देते हैं। ये देखो फनल है, इसको उल्टा करके रखा हुआ है। दिस इज़ द इन्वर्टेड फनल। यहाँ कुछ पोर्सिलिन पीसेस हैं यहाँ रखे हुए हैं और अब क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हम हीट करते हैं तो ये जो सॉल्वेंट है यहाँ पोर्सिलिन पीसेस होने के कारण एक इसकी स्ट्रीम जो है वो यहाँ से निकलेगी। और हमने यहाँ फनल भी रखी हुई है, तो जब बॉयल होगा सॉल्वेंट तो डायरेक्ट हीटिंग नहीं हो रही है। जैसे ही बॉयल होगा सॉल्वेंट तो इसकी एक स्ट्रीम यहाँ से निकलेगी और इसको थर्मामीटर को कवर कर लेगी। एक थिन लेयर थर्मामीटर के ऊपर बन जाएगी और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा हम उसको टेम्परेचर को देख लेंगे। दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सुपर हीटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। दिस इज़ द सुपीरियर वर्जन ऑफ बेटर वर्जन ऑफ दिस बेटर वर्जन। अब क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूट डाल देंगे और ये बन जाएगा सॉल्यूशन। इसी तरह इसको हीट करेंगे और इस पोर्सिलिन पीस और इस फनल की वजह से ये एक स्ट्रीम फिर से आएगी और थर्मामीटर को कवर कर लेगी और ये आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो जो डिफरेंस होगा वो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। तो हमारे पास फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने का। 1000 स्मॉल w Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डेल्टा Tb एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज वेट ऑफ द सॉल्वेंट। और इससे हम मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का निकाल लेते हैं। 3.12 gram of solute is dissolved in 125 gram water. स्मॉल w दिया गया है 3.12 और 125 ग्राम दिया गया है कैपिटल W। और यहाँ दिया गया है इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज़ 100.413। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 100.413। Kb दिया हुआ है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर 0.512। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हमारे पास फॉर्मूला है 1000 Kb W कैपिटल W इंटू डेल्टा Tb। W आपके पास है, Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है, W भी है। अब डेल्टा Tb निकालना है तो सबसे पहले तो हम इसमें 373 प्लस कर देंगे, केल्विन में कर लेंगे टेम्परेचर को। और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है आपको पता है 373 है, तो इसको माइनस करके हमारे पास आएगा डेल्टा Tb इन केल्विन। ये वैल्यूज़ लगा देंगे 1000.512 Kb, W 3.12, कैपिटल W है 125 एंड डेल्टा Tb इज़ 0.413 और मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा हमारे पास 30.95 ग्राम पर मोल। सो इट्स टू ईजी। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है
तो न्यूमेरिकल करने से आप घबराइएगा नहीं, आप ज़रूर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके आइएगा। तो आज हमने किया ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कंप्लीट कर ली कि क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर इसका हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, और लास्ट में हमने किया मेजरमेंट कैसे करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, और एक न्यूमेरिकल। तो इससे कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट हम फिर एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे। थैंक्स।